کا نستعین میرے پاکستانیوں، میں یہ جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو اب بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں، ڈیفنس کانٹریکٹس، ہر چیز میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور پاکستان کدھر؟ اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر کمائی کی، اپنے 20-25 سال سب کچھ بیچ کے آج پاکستان ہے، کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا، سارا پیسہ میرے نام پہ ہے، جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی بے نامی نہیں ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے، جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانے گی۔ وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے، جن کے پیسے، جن کی بزنسز، اور بزنس کیا ہے؟ ریل اسٹیٹ، یعنی یہاں سے پیسہ دیا، وہاں سے زمین، گھر بار، ریل اسٹیٹ خرید لی، اور بس یہ بزنس ہے، اس کی رینٹ کے اوپر رہے، یہ ان کی بزنسز ہیں۔ اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہر 30 سال سے چوری کر رہے ہیں۔ حدیبہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی، جب اسحاق ڈار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں، 164 کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں، اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر ریمیٹنسز دکھا کے یہاں بلایا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے۔ اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر BBC کی بھی ڈاکیومنٹ بنی ہے، اخباروں میں بھی آیا۔ تو یہ 30 سال سے یہ پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں، اور یہ آج محب وطن پاکستانی ہیں، اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں، جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے، جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے، میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے، جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے، اور پھر ڈیل NRO کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ حیران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے، اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے۔ کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں، لوگ 30 سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستان۔ تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جدوجہد ہے آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، وہ اس کو ایسے نہیں کہہ رہے۔ یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا، اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف،
कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, कभी वो जो बाहर बैठा हुआ है लंदन में सजा याफ्ता वो कभी बोलेगा नहीं, जरदारी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, अरबों रुपया इनका बाहर पड़ा है और उनको सबको पता है इनका पैसा बाहर पड़ा है। जब आपका वो जब भी चाहे उनका एक उनके कानून है, वो सारे उनकी एजेंसीज पता चलवा लेती हैं कि किसका क्या पैसा पड़ा, और ये जब जवाब नहीं देते और ये समझते हैं कि हम जनाब उनके जब जूते वगैरह पॉलिश करेंगे तो वो हमारे से बड़े अच्छे हो जाएंगे। और बिलावल भुट्टो की पता नहीं कितने उसने अरबों रुपया खर्च किया अपने दौरों के, हर दूसरे दिन अमेरिका गया होता था, इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है, सब वहाँ उनको खुशामद करने में आगे आगे थे। तो ये नतीजा मिला है कि आज वो जिनकी 14 महीने से ये खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की हैसियत बता दी है। हिंदुस्तान है अगला, आपने हिंदुस्तान के अगर इसी तरह उनके चेले बन के रहना तो ठीक है, नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। असल में इसका ये मफहूम निकला है। मुझे क्यों तकलीफ है इसकी, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हमारा जो मुल्क था ये जिस तेजी से ऊपर जा रहा था, आप 60 की दिहाई में जरा देखें पाकिस्तान कैसे तेजी से ऊपर जा रहा था। हम जब स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान में, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कॉन्फिडेंस था। मैं जब 70 की दिहाई में क्रिकेट खेलने गया हिंदुस्तान, तो एक वो हमें और तरह देखते थे, हमें वो उनको पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स था, हम हर तरह आगे थे उनसे। और पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी 60 की दिहाई में कि डेवलपमेंट मॉडल देखें पाकिस्तान का कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारे ऊपर बल्कि एक किताब भी किसी ने लिखी थी कि एशियन मिरेकल के ये वो जो मुल्क है जो सबसे तेजी से एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। मेरे साथ मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे आगे, हमारे साथ HSN में या सारे मिडल ईस्ट से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। पाकिस्तान के अंदर एक होप थी, कॉन्फिडेंस था। 70 की दिहाई में जैसा मैं हिंदुस्तान गए तो वहां में और तरह देखते थे। 80 की दिहाई में भी हम जब मैच खेलने जाते थे तो जब वापस आते थे पाकिस्तान तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में आ गए हैं। मैं 80 की दिहाई की बात करूं, ये ज्यादा देर की बात नहीं है। जब से ये दो खानदान आए हैं, 90 की दिहाई से हम पीछे रहना शुरू हुए, ये पैसा बनाना शुरू हो गए, मुल्क पीछे जाना शुरू हो गया। और पहले हिंदुस्तान हमारे से आगे निकला 90 की दिहाई में, और उसके बाद बांग्लादेश आगे निकल गया। जिस बांग्लादेश को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, बोझ है हमारे ऊपर, हम अमीर हैं, वो गरीब मुल्क हैं, वहाँ साइक्लोन आता है तो हमारे ऊपर हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं। ये मैं अपने कानों से बातें सुनी हुई है। बांग्लादेश भी आगे निकल गया और आज ये हालात हैं पाकिस्तान के कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हर दुनिया के जो नीचे वो मुल्क जो एक वक्त में पाकिस्तान को देखा करते थे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हम सबसे नीचे अब जा रहे हैं तेजी से। और सबसे जो अफसोसनाक बात मुझे क्या लगती है, मुझे ये आगे जो खौफ आ रहा है कि अगर हमने अभी अपना रास्ता ना बदला और जिस रास्ते पे ये लेके जा रहे हैं, ये जो फैशिस्ट रिजीम ऊपर बैठी हुई है, जिस तेजी से हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं, आगे बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म होने वाली है और ये बर्बादी की तरफ मुल्क जा रहा है। मैं आपको कुरान की आयत बता दूं कि अल्लाह ने कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चले। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं बार बार आपके सामने बात कह बैठा हूँ, लेकिन मेरा काम है एक वो आदमी जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ है, जिसका जीना मरना इस मुल्क में है, ये मैं आपको बार बार ये बात बताता जाऊंगा कि हम इस वक्त बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने डायलॉग का भी बात की कि जी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से डायलॉग करो, वो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं इमरान खान को किसी की ज़रूरत है या मैं किसी के कोई खौफ ज़दा हूँ या मैं ये समझता हूँ कि बड़ा प्रेशर है तो मैं इसलिए डायलॉग करूँ। मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले
कि इतनी जो हमने कहा, जो जिस आर्मी चीफ ने जब मुझे हटाया, उसने कहा जी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था। मुझे ये बताएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, प्रेसिडेंट ने, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी में शामिल। मेरी अभी भी ट्वीट पढ़ लें, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा पहले आगाह करो कि पाकिस्तान ने कि किस तरह की दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कैसी कुर्बानी दी। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे अमेरिका दावत दी, और जो मेरे साथ थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल मुझे दिया, जरा बताएं कभी किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिला? उसने इज्जत भी दी, उसके सामने मैंने कश्मीर की बात की, उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कश्मीर का मसला हल करने के लिए। इनकी जरूरत नहीं है नाम लेने के लिए कश्मीर का। उसके बाद उसने सारे मेरे और मेरे डेलीगेशन को सारे व्हाइट हाउस का खुद दौरा करवाया, टूर करवाया, इज्जत दी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं मगरबी ज़हन को समझता हूं। आप अगर उनके नीचे उनके समझते हैं कि उनके जूते पॉलिश करने से वो आपकी बड़ी कोई रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको हकारत से देखते हैं। वो समझते हैं जो अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होता है, वो उसकी इज्जत करते हैं। मैं ये कह के थक गया हूं कि मगरबी माइंड ये चीजें समझता है। मैं जब कहता था कि वॉर ऑन टेरर हमें अमेरिका की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, तो उन सबको पता था जब मैं अमेरिका गया हूं कि मैंने उनकी जंग की मुखालफत की थी कि हमें नहीं शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूं। मेरे मुल्क के 80,000 लोग उसके अंदर शहीद हुए थे, हमारी जंग नहीं थी। तो मैं जब उनकी तनकीद करता कि उनकी जंग में नहीं डा, वो समझते हैं कि ये एक आदमी अपने मुल्क की बात कर रहा है। मैंने जब उनको कहा अफगानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो उनके सेनेटर लिंडजी ग्राहम, यहाँ तकड़ा सेनेटर रिपब्लिकन का, उसने पाकिस्तान आके बयान दिया कि इमरान खान ठीक कह रहा था, कि वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो जाके जनाब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हर दूसरे दिन पहुंच के अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इससे वो मुतासिर नहीं होते। और इसीलिए ये जो फॉरेन पॉलिसी बना दी है कि जी हम सारी दुनिया को हम सारी दुनिया के साथ अच्छे अच्छे बातें करें, उनको आम के टोकरे पर भिजवा दें, और हम जाके उनके साथ बड़ी अच्छी अच्छी तरह उनके हाथ हूथ पकड़ के बात करें, ऐसी ये बातें नहीं चलती। आज आइसोलेशन है पाकिस्तान की, इसको आइसोलेशन कहते हैं कि वो मुल्क जिन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा, हमने डील कर ली थी उनसे, ये आगे बात तो बढ़ाते। हमारी तो सदन पुतिन ने अपना एनर्जी मिनिस्टर भिजवाया था मेरी मीटिंग के बाद, हम आज से मुलाकात हुई, मैंने उसको समझाया कि हमारी ये सुपर साइकिल की वजह से कोरोना के बाद तेल की कीमतें और यूक्रेन की वजह से ऊपर चली गई हैं। हमारे मुल्क में, मेरे भी और गरीब मुल्कों में मुश्किलें पड़ी हुई हैं। उसने एनर्जी मिनिस्टर भिजवाया, बात हो गई, वापस आए तो नो कॉन्फिडेंस हो गई, क्योंकि जनाब यहाँ आर्मी चीफ साहब बातें कर रहे थे, वहाँ उनको बता रहे थे जी बड़ा एंटी अमेरिकन है और इमरान खान, और उधर से साइफर आ गया कि जी इमरान खान को हटाओ नो कॉन्फिडेंस में। बात बीच में आएगी, तो इनको तो मौका मिल रहा था। हिंदुस्तान जब सस्ता तेल 40% कम कीमत पर तेल मंगवा रहा था, तो इन्होंने क्यों नहीं आगे बात बढ़ाई? क्योंकि ये गुलाम है और गुलामों की कोई इज्जत नहीं करता दुनिया में। और आज जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जिधर खड़ी है, ये अब आपके सामने देख लें कि हम किधर हैं। तो अल्लाह का हुक्म है कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब वो मेरे हुक्म पे नहीं चलती, और वो मेरी जमीन पे अदल और इंसाफ कायम करो। ये सारे